Assalamualaikum friends, hope so you all will be fine with the grace of Allah Almighty. Here we are discussing the GABA English for class 7, the second lesson, which is the Emperor's New Clothes. Okay, here we start our lesson. Many years ago there lived an emperor who liked new clothes so much that he spent all his money on them. Weavers and tailors from all over the world flocked to his court, and each one tried to outdo the others in making clothes of matchless elegance and beauty. The great city where he lived was always very busy, for every day new craftsmen arrived in great numbers. Many years ago there lived an emperor who loved beautiful new clothes so much that he spent all his money on being finely dressed. His only interest was show off his new clothes. There lived an emperor who liked new clothes so much that he spent all his money on them. काफ़ी साल पहले एक एम्परर रहता था जो कि अपनी तमाम का तमाम पैसा या रुपया जो है वो कपड़ों पर खर्च करता था, क्योंकि उसे नए कपड़े पहनने का शौक़ था. वीवर्स एंड टेलर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड flocked to his court, and each one tried to outdo the others in making clothes of matchless elegance and beauty. उसके दरबार में कपड़ा बनाने वाले और दर्जी हर वक्त मौजूद रहते थे, और उनकी ये कोशिश होती थी कि वो एक बेहतरीन किस्म का, शानदार किस्म का और ख़ूबसूरत, ऐसा ख़ूबसूरत जो किसी ने पहले ना देखा हो, उसके लिए ड्रेस तैयार करें. द ग्रेट सिटी वेयर ही लिव्ड वॉज ऑलवेज वेरी बिजी, फॉर एवरी डे न्यू क्राफ्ट्समैन अराइव्ड इन ग्रेट नंबर्स. पूरा शहर जो है वो इसी चीज़ में बिज़ी रहता था कि वो बेहतरीन से बेहतरीन कपड़े बनाते रहें. बहुत से लोग पूरी दुनिया से हर रोज़ जो है वो इस जगह पे आते थे. One day two cheats came to the city. They claimed that they were weavers and declared that they could weave the finest cloth in the whole world. Not only would the colors and pattern be incredibly beautiful, they said, but cloths made of their fabric would become invisible to any person who was not fit for his job or was extremely stupid. One day two cheats came to the city. एक दिन दो चीट जो हैं वो उस सिटी में आते हैं. They claimed that they were weavers and declared that they could weave the finest cloth in the whole world. और वो इस चीज़ का दावा करते हैं कि वो सबसे बेहतरीन, किस पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन कपड़े बना सकते हैं. Not only would the colors and pattern be incredible beautiful, ना सिर्फ ये कि उसका कलर और उसका डिज़ाइन जो है वो बहुत खूबसूरत होगा, उन्होंने कहा, बट क्लॉथ्स मेड बाय दैट फैब्रिक वुड बिकम इनविजिबल, और जो उसका फैब्रिक होगा या उसका जो कपड़ा होगा वो इनविजिबल होगा, यानी नज़र नहीं आएगा टू एनी पर्सन, उस बंदे को हु वाज नॉट फिट फॉर हिज जॉब, जो कि अपनी नौकरी के काबिल नहीं होगा, और वाज एक्सट्रीमली स्टूपिड, या फिर बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ होगा. When the emperor heard of this, he thought, this fabric will make very useful clothes. Not only will I look wonderful in them, but also I will be able to tell if any of the men in my empire is not fit for his high position. Oh yes, I will have a suit made of this cloth right away. When the emperor heard of this, जब एम्पेरर ने इसके बारे में सुना, he thought, उसने सोचा, this fabric will make very useful cloth, इस कपड़े से बहुत ही फ़ायदेमंद ड्रेस बन सकता है. Not only will I look wonderful in them, ना सिर्फ ये कि मैं उसमें बेहतरीन लगूँगा, but also I will be able to tell, और मेरे अंदर ये काबिलियत हो जाएगी कि मैं बता सकूँ, if any of the men is my empire is not fit for his high position, के कौन लोग हैं जो कि मेरी एम्पायर में
अपनी पोजीशन के लिए सही नहीं है. Oh yes, I will have a suit made of his cloth right away. मुझे फ़ौरन ही एक सूट उस कपड़े का बनवाना चाहिए. So he gave the two cheats a great deal of money, for they said that they needed to buy silk and gold thread to weave their wonderful cloth. Then the two cheats set up a loom and pretended to be hard at work of weaving the cloth. In reality, however, they did nothing at all upon their loom, and they spent the emperor's money on fine clothes and food for themselves. So he gave the two cheats a great deal of money. अब यहाँ पर एम्पेरर जो है वो उसके साथ चीट्स के साथ एक बहुत बड़े अमाउंट की डील कर लेता है. फॉर सेड दैट, जो कि चीट्स ने ये कहा होता है कि उन्हें इस क्लॉथ को बनाने के लिए सिल्क चाहिए, गोल्ड का थ्रेड चाहिए, ताकि वो इसको बहुत अच्छे तरीके से बना सकें. देन द two cheats set up a loom and pretended to be hard at work. अब वो लोग लूम कहते हैं जिस पर कपड़ा बनाया जाता है, वो उसको सेट कर लेते हैं और ऐसे ज़ाहिर करते हैं कि वो बहुत मेहनत कर रहे हैं कपड़ा को बनाने में. The cloth in reality, however, they did nothing at all upon their loom. अब वो ऐसे ज़ाहिर करते हैं कि वो असल में इसके ऊपर बहुत काम कर रहे हैं, जबकि वो लूम्स के ऊपर कोई काम नहीं कर रहे होते. एंड दे स्पेंड एम्पेरर्स मनी ऑन फाइन क्लॉथ्स एंड फूड फॉर देमसेल्व्स, कि वो एम्पेरर्स की मनी जो है वो बेहतरीन किस्म के कपड़ों पे और फूड पर अपने इस्तेमाल कर रहे होते हैं. आफ्टर अ फ्यू डेज द एम्पेरर विश टू नो हाउ द न्यू वीवर्स वर गेटिंग ऑन. सो ही सेंड हिज टू मोस्ट trusted counselors to their house to report to him how the work was going on. I will send them, thought the emperor, because no one understands their job better than they do. I can be sure that they will be able to see the marvelous clothes. After a few days, कुछ दिनों के बाद, द एम्पेरर विश टू नो हाउ द न्यू वीवर्स वर गेटिंग ऑन. नाउ द एम्पेरर हैड अ विश टू सी द रिजल्ट ऑफ द cheaters. So he sent his two most trusted counselors to them. Okay. So he sent his two most trusted counselors to their house to report him how the work was going on, कि कैसे काम वहाँ पर क्या काम हो रहा है. I will send them. After a few days, the emperor wished to know how the new weavers were getting on. So he sent his two most trusted counselors to their house to report to him how the work was going on. I will send them, thought the emperor, because no one understands their job better than they do. I can be sure that they will be able to see the marvelous cloth. After a few days, कुछ दिनों के बाद, the emperor wished to know how the new weavers were getting on. अब एम्पेरर की ये ख्वाहिश होती है कि वो देखे कि चीट्स क्या काम कर रहे हैं या वीवर्स क्या काम कर रहे हैं. So he sent his two most trusted counselors to their houses to report. अब वो अपने दो बेहतरीन या ज़िम्मेदार किस्म के, जिन पे वो ट्रस्ट करता है, काउंसलर्स भेजता है और उनको कहता है कि वो उसको रिपोर्ट करें हाउ द वर्क वाज गोइंग ऑन, कि कैसे काम हो रहा है. आई विल सेंड देम, थॉट द एम्पेरर सोचता है कि उसने मैं उनको भेजूँगा. बिकॉज नो वन अंडरस्टैंड्स देयर जॉब बेटर देन दे डू. कोई भी इनसे बेहतर अपना काम अच्छे से नहीं कर सकता. आई कैन बी श्योर दैट दे विल बी एबल टू सी द मार्वलस क्लॉथ.
तो वो कहता है कि वो इस शानदार किस्म के जोड़े को देख सकेंगे. The good old counselors went to Cheats' loom as they were ordered, but when they came to look at the loom, although the two Cheats were hard at work upon it, neither could see a cloth of any kind. Mercy preserve me, although the first, can I indeed be so stupid? I never thought so before, and no one must even know it. The other said to himself, perhaps I am unfit for my office. Oh dear, oh dear. I will never do for me to tell that I cannot see the cloth. So when the Cheats begged them to look closer and asked, do you not approve the colors and patterns? The first old man said, oh yeah, charming, enchanting, cried the other. What a fine pattern! We shall certainly tell the emperor when we see him. The good old man counselors went to Cheats' loom as they were ordered. दोनों काउंसलर जो है वो चीट्स की लूम के पास जाते हैं. लूम कहते हैं कपड़ा बनाने वाली मशीन को. बट व्हेन दे केम टू लुक एट द लूम, लेकिन जब वो लूम की तरफ देखते हैं, ऑल्दो द टू चीट्स वर हार्ड टू वर्क अपॉन इट, देखने में ऐसे ज़ाहिर हो रहा होता है कि दोनों चीट्स जो हैं वो इसके ऊपर बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं. नीदर कुड सी अ क्लॉथ ऑफ एनी काइंड, लेकिन उनको वहाँ पर कोई भी कपड़ा नज़र नहीं आता. मर्सी प्रिजर्व मी थॉट द फर्स्ट. अब ये कहते हैं कि अल्लाह मेरे ऊपर रहम करे. कैन आई इंडीड बी सो स्टूपिड, क्या मैं इतना बेवकूफ़ हो गया हूँ. आई नेवर थॉट सो बिफोर एंड नो वन मस्ट एवर नो इट, मैंने इसके बारे में कभी नहीं सोचा और कोई इसके बारे में नहीं जानता. द अदर सेड टू हिमसेल्फ, दूसरे ने कहा. परहैप्स आई एम अनफिट फॉर माई ऑफिस, दूसरे ने कहा कि क्या मैं अपने ऑफिस के लिए सही नहीं हूँ. ओ डेयर आई इट विल नेवर डू फॉर मी टू टेल दैट आई कैन नॉट सी द क्लॉथ, मेरे अंदर ये हिम्मत नहीं है या ये मैं नहीं कर सकता कि मैं ये बताऊँ कि मैं इन कपड़ों को नहीं दे सकता. सो व्हेन द चीट्स बेग देम टू लुक क्लोजर एंड आस्क, जब चीट्स उनको कहते हैं कि करीब आएँ और देखें, डू यू नॉट अप्रूव द कलर्स एंड पैटर्न, कि आप क्या कलर और पैटर्न को अप्रूव नहीं कर रहे हैं. इन द फर्स्ट ओल्ड मैन सेड, ओ ये चार्मिंग इंचांटिंग, क्राइड द अदर, वो कहते हैं ये तो बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ही आला है. व्हाट अ फाइन पैटर्न, कितना ज़बरदस्त इसका डिज़ाइन है. वी शैल सर्टनली टेल द एम्परर हु व्हेन वी सी हिम, जब हम उनके पास जाएंगे तो हम उनको बता देंगे. वेल वी आर वेरी ग्लैड ऑफ दैट, सेड द टू चीट्स वीवर्स. देन they named all the colors and described the pattern. The two old counselors listed carefully so that they might be able to describe the cloth in detail to the emperor. अच्छा, ये बहुत बेहतरीन है, ये सेट द टू चीटर्स वीवर्स, जो दो चीट्स थे वो कहते हैं कि ठीक है ये बहुत अच्छा है. देन दे नेम्ड ऑल द कलर्स एंड डिस्क्राइब द पैटर्न, अब वो उस कपड़े का नाम, उसका कलर और उसका डिज़ाइन वगैरह बताना शुरू हो जाते हैं. द टू ओल्ड काउंसलर्स लिस्टेड केयरफुली सो दैट लिसन केयरफुली so that they might be able to describe the cloth in detail to the emperor. अब वो एम्पेरर को, वो इसको बहुत आराम से और तवज्जो से सुनते हैं ताकि वो एम्पेरर को इसके बारे में बता सके. एंड सो दे डिड when they return to the court, और वो इस तरह करते हैं जब वो कोर्ट में पहुंचते हैं. ऑफ कोर्स दे डिस्क्राइब द क्लॉथ एग्जैक्टली द सेम वे एंड द एम्पेरर बिकम क्वाइट श्योर दैट they were telling the truth. The two cheats then asked the emperor for more money so they could finish the cloth, and he sent it straight away. They put all his gold in their own pockets, and not a thread was put upon the loom, although they continued
to pretended to work on it just as before. And so they did, और जैसे कि वो करते हैं, when they returned to court, जब वो वापस कोर्ट में पहुंचते हैं. Of course they describe the cloth exactly the same way. वो उस कपड़े के बारे में उसी तरह बताते हैं जैसे कि उसने चीट्स ने बताया होता है. And the emperor become quite sure that they were telling the truth. और एम्पायर को यकीन हो जाता है क्योंकि वो सच, उसे मालूम होता है कि वो सच बोल रहे हैं. The two cheats then asked the emperor for more money so they could finish the cloth and he sent it straight away. अब चीट्स जो हैं वो मोर मनी उसके मांगते हैं ताकि वो इसको कंप्लीट कर सकें. They put all his gold in his own pocket and not a thread was put upon loom. वो तमाम का तमाम सोना अपनी जेब में डालते हैं और उन कपड़े के ऊपर कुछ भी नहीं लगाते. Although they continued to pretend to work on it just as before. और वो ऐसे ही pretend करते हैं, ऐसे ही ज़ाहिर करते हैं कि वो अपना काम अच्छे से कर रहे हैं जैसे पहले कर रहे थे. Soon everyone in the city was talking of the gorgeous cloth and the emperor could not wait to see it for himself. He went with his trusted counselors and all this court to the house of the weavers. They were taken straight to the loom. Is it not splendid? Said the two old men who had been there. For does not your majesty remark upon the colors and the patterns? Then they pointed to the empty loom, for they were quite sure that the other could see the cloth. Okay. Soon everyone in the city was talking about the gorgeous cloth and the emperors could not wait to see it for himself. अब हर कोई टाउन के अंदर इस गॉर्जियस क्लॉथ और एम्परर के बारे में बात कर रहा होता है और एम्परर जो है वो उसको सब्र नहीं होता, वो इसका मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकता कि वो उसको ना देखे. ही वेंट विद हिज ट्रस्टेड काउंसलर. वो अपने जो ट्रस्टेड काउंसलर्स होते हैं उनके साथ जाता है लूम्स में, वीवर के हाउस में. दे वर टेकन स्टेट एट द लूम. तो वो बिल्कुल लूम के पास लेकर जाते हैं उसको. इज़ इट नॉट स्प्लेंडेड? क्या ये शानदार नहीं है? सेड द टू ओल्ड मैन हु हैड बीन देयर बिफोर. जहाँ पर वो पहले से मौजूद होते हैं दोनों काउंसलर. डज नॉट योर मैजेस्टी रिमार्क अपॉन द कलर्स एंड द पैटर्न? क्या इसके कलर और इसके डिज़ाइन बेहतरीन नहीं है? देन दे पॉइंटेड टू द एम्प्टी लूम. एक खाली जो लूम है जिसके ऊपर कोई कपड़ा नहीं, उसको पॉइंट करके कहते हैं कि क्या आपको ये बहुत ज़्यादा शानदार नहीं लग रहा है? फॉर दे वर क्वाइट श्योर दैट द अदर कुड सी द क्लॉथ. और इस चीज़ का यकीन दिलाते हैं कि हर बंदा उसको देख सकता है या वो दोनों उसको देख सकते हैं. ओके, द नेक्स्ट वन इज़ व्हाट्स दिस? थॉट द एम्परर. आई कैन सी नथिंग एट all. Am I stupid? Am I not fit to be the emperor? But aloud he said, yes, yes, very pretty, very pretty. And all his courtiers, not wishing to appear stupid, looked at the empty loom and exclaimed, yes, yes, very pretty, very pretty. Everyone agreed that the emperor should have a suit made of the wonderful cloth to wear in a great procession that was to be held in the city the next day. एम्पीरियर सोचता है कि क्या वो बेवकूफ़ है जो उसको वो ड्रेस नज़र नहीं आ रही और वो अपनी एम्पीरियरशिप के लिए सही नहीं है, लेकिन वो इस चीज़ को छुपाता है कि उसको वो कपड़े नज़र नहीं आते और कहता है बहुत खूबसूरत हैं. और उसके जो दरबान जो उसके साथ आए होते हैं वो भी कहते हैं कि ये सबसे बेहतरीन ड्रेस है अगले दिन जो प्रोसेशन होने वाला है उसके लिए. स्प्लेंडेड आइडिया, एक्सक्लेम द एम्परर एंड ऑर्डर द टू चीट्स टू मेक हिम अ सूट दैट वेरी नाइट. यहाँ पर एम्पीरियर ये कहता है और चीट्स को ऑर्डर देता है कि इस सूट को आज की रात में ही तैयार कर दें. ऑल्दो द सिटी द न्यूज़ वेंट फ्रॉम माउथ टू माउथ दैट द एम्परर वाज टू वेयर द वंडरफुल क्लॉथ्स. अ ग्रेट क्राउड gathered around the cheats house, though
the windows, they could be seen hard at work completing the emperor's new clothes. They pretended to take the cloth down of the loom. They made careful cuts in the air with their scissors. They sewed it with needles without any thread, until at last they said, the new clothes are ready. Now जब सब लोगों को मालूम होता है कि एम्पियर ने नए शानदार किस्म का एक ड्रेस तैयार करवाया है, तो एक बहुत बड़ा जमे गफ़ीर जो है वो चीज़ के घर के बाहर खड़ा हो जाता है और इंतज़ार करता है कि हर बंदा उसके एम्पियर के न्यू ड्रेस को देख से। यहाँ पर चीट्स जो है वो प्रिटेंड करते हैं कि वो अपना काम ख़त्म कर चुके हैं और अब वो बड़े केयरफुल तरीके से जो है वो लूम से उसको निकालते हैं ड्रेस को और केयरफुली उसको कट करते हैं और नीडल इस्तेमाल करते हैं जिसके अंदर थ्रेड भी नहीं होता और ऐसे प्रिटेंड कर रहे होते हैं जैसे वो अब इसको स्टिच कर रहे हैं। और फिर दोनों चीट्स कहते हैं कि द न्यू क्लॉथ्स आर रेडी, कि न्यू क्लॉथ जो हैं वो रेडी हो गए हैं। द न्यूज़ स्प्रेड in the city like wildfire. Everybody was chanting, the new clothes are ready, new clothes are ready. हर तरफ ये बात फैल जाती है जंगल में आग की तरह के न्यू क्लॉथ जो है वो रेडी हो गए। The emperor came with all his noble lord. The two cheats stood as if they were really holding something, and they said, here are your trousers, your majesty, and there is the coat, and see, here is the cloak. All the noble lord sighed with pleasure and assured the emperor that they had never seen such a lovely suit. So the emperor took off his old clothes, and two cheats pretended to dress him in the trouser, the coat, and the cloak. The emperor looked at himself carefully in the mirror. यहाँ पर मिरर जब यहाँ पर एम्पियर जो है वो एक नोबल लॉर्ड की तरह एक आता है अपनी जाहो वजाहत के साथ। दोनों चीट्स वहाँ पर खड़े हुए होते हैं और वो ऐसे प्रिटेंड कर रहे होते हैं जैसे वो उनके हाथ में उन्होंने कपड़े पकड़े हुए हैं। पहले वो कहते हैं कि ये ट्राउज़र लीजिए, ये आपका कोट है और ये आपका क्लॉक है, ऊपर का चूहा, क्लॉक कहते हैं चूहे को। और हर कोई देखकर ये कहता है कि कितना खूबसूरत सूट है। द एम्पियर टुक ऑफ हिज ओल्ड क्लॉथ्स। अब एम्पियर अपने जो पुराने कपड़े वो उतार देता है और बड़ी एहतियात के साथ मिरर में देखता है। ओह हाउ मार्वलस यू लुक। हर कोई कहना शुरू हो जाता है कि कितने हसीन लग रहे हैं आप और कितने शानदार लग रहे हैं। Oh, how marvelous you look, sir! What a perfect dress," said the courtiers. "Well, I am ready," replied the emperor. The two chambers stooped down to pick up the train of his clock, and pretended to be holding it with great care, for they did not wish anyone to find that they could really see it. यहाँ पर ये कोई जानने की कोशिश नहीं करता कि वाकई ये नज़र आ रहा है या नहीं, और उसको ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि वो सबको नज़र आ रहा है। So the emperor went in procession through the city, and everyone in the street said, "How marvelous the emperor's new cloth are! What a splendid clock!" No one could let his neighbors suspect that he could not see the cloth. They are certainly the most popular clothes the emperor has ever had. जब वो एम्पियर प्रोसेशन के लिए निकलता है तो वो उस टाउन की, उस सिटी की गली वगैरह में से गुज़रता है और हर बंदा देख के कहता है कितना शानदार है। कोई ये सोचने की कोशिश नहीं, बोलने की कोशिश नहीं करता कि उसको नज़र आ रहा है या नहीं है। वह अपने साथ वाले से पूछने की कोशिश नहीं करता कि उसको नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा। These are certainly the most popular clothes the emperor has ever had. सबसे ज़्यादा मशहूर होने वाले ड्रेस ये होता है। At last a small child who stood at the back cried out, "Look, oh look, emperor has nothing on." यहाँ पर एक ट्विस्ट होता है जब एक स्मॉल चाइल्ड रिवील करती है कि चाइल्ड रिवील करता है कि
और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है कि लुक एम्पियर हैज़ नथिंग ऑन, के एम्पियर ने कुछ भी नहीं पहना हुआ। जस्ट हेयर व्हाट दैट फुलिश चाइल्ड इज़ सेइंग, सेड हर फादर टू अ फ्रेंड। फादर का फ्रेंड अपने कहता है कि देखो ये बच्ची कितनी बेवकूफ़ी से बोल रही है। हुश नाउ एंड माइंड योर मैनर्स, अपने आप में रहो, कितनी बदतमीज़ बच्ची है। बट द वर्ड्स of the small child were whispered from one person to another, and after a while the whole crowd said, yes, look, the emperor has nothing off, and it seems to the emperor that they were right. यहाँ पर उस बच्ची की आवाज़ सुनने के बाद हर एक के कानों में विस्पर होना शुरू हो जाती है कि वाकई एम्पियर ने कुछ भी नहीं पहना हुआ। बट ही थॉट दैट हिमसेल्फ मस्ट बी गो ऑन एंड फिनिश द पोसेशन, लेकिन वो सोचता है कि मुझे वापस जाना चाहिए, पोसेशन कंप्लीट करना चाहिए। एज सो दे वेंट ऑन अंटिल दे रीच द पैलेस एंड द टू चैम्बरियस हेल्ड ऑन टाइटर देन इवन एंड कैरिड द क्लॉक दैट डिड नॉट एग्जिस्ट एट ऑल। अभी तक वो उसी क्लॉक को पकड़े हुए होते हैं जिसका कोई वजूद ही नहीं होता। एज़ फॉर द टू चीट्स दे हैड ऑलरेडी लेफ्ट द सिटी एंड वर नेवर हर्ड ऑफ अगेन, और वो इतनी दूर, वो दोनों चीट्स इतने दूर जा चुके होते हैं और उसके बारे में फिर किसी ने कुछ नहीं सुना होता।